तो वो काउंटेस ऑफ मॉर्सफ का घर जो है वो एक बेसिकली एक बंगला की तरीके का है एंड दैट इज इन रू डी हेल्ड्रे पेरिस। रू डी हेल्ड्रे एक जगह का नाम है जो कि एक पेरिस के अंदर है। द काउंटेस ऑफ मॉर्सफ इज सीटेड। जो काउंटेस है, जो बीवी है उसकी, वो बैठी हुई है और उसका जो बेटा है वो आगे पीछे जो है वो राउंड लगा रहा है। ठीक है। एल्बर्ट, it comes to this, mother, mark my words carefully. It comes to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. Countess, disgraced. Albert, are you sure? Albert, it is true beyond all doubt. The case came up for inquiry this evening in the Chamber of Deputies. The inquiry was conducted by the President himself. Countess, stay a moment. Were you present at this inquiry, my son? Albert, not so, mother. Members of the public were not admitted, but I had a report of the proceedings from my good friend Bouchamp, the newspaper editor. Countess, ah, just so. Proceed. Albert, my father arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him which had appeared in two different newspapers. These charges were that in the year 1823, when he was a captain in the French army, he received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yania. Countess, and what did your father say to those charges? Albert, he denied them. Countess, did he prove that they were false? Albert, how he could not do so. He had no proofs, he said, but he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then at the last minute there came in a witness, a strange lady who was given up. She brought with her proofs signed, sealed, and witnessed that my father had taken money from the Turks and betrayed his country. After the deputies had seen proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned as a traitor, and we are disgraced and ruined. Countess, did your father still deny the charge? Albert, not at all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified when, with one voice, the deputies condemned with him rushed from the chamber, shrieking like a madman. Countess, then we are indeed ruined. My son, what you do now? What can you say? Albert, what can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morcerf. The name of Morcerf is dragged down in the mire. I shall change my name and leave Paris. But there is one another thing that I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put his sharp sword of mine through his body. Countess, uneasily, what man is that? Who has done this thing? Whom do you mean to kill? My son, will you kill the president of the republic and all the deputies? ओके सो यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा कि स्टोरी के स्टार्ट में अल्बर्ट कहता है कि मेरे वर्ड्स को आप याद रखिएगा कि हमारी फैमिली जो है उसका नाम रूइंड हो चुका है, खराब हो चुका है। उसकी माँ उससे पूछती है कि किस किस तरीके से खराब हुआ, कि तुम्हें पक्का यकीन है कि हमारी फैमिली जो है वो बदनाम हो गई है? तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो उसके जो फादर थे मॉर्सेफ, वो उनके बारे में बताते हैं कि हमारे जो फादर थे उनका केस जो है वो आज जो है चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के पास आया था और जो इंक्वायरी थी वो खुद प्रेसिडेंट ने कंडक्ट की थी। तो काउंटेस उससे पूछती है क्या तुम वहां थे? तो वो कहता है मैं तो नहीं था, लेकिन जो मेरा दोस्त था बूशम, जो कि एक न्यूज़पेपर एडिटर है, वो वहां था और उसने मुझे सारी डिटेल्स दी हैं। तो वो कहती है अच्छा तो वहां हुआ क्या था? तो वो बताता है कि मेरे जो बाप है उसको बुलाया गया था चेम्बर में 8 बजे के करीब, और वो वहां पे जाके उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे कि उन्होंने जो है वो ब्राइब्स ली थी, मतलब रिश्वत दिया करते थे, और वो जो है एक ट्रेटर है। तो ये वाली जो सारे एलिगेशंस थी इनको साबित करने के लिए वो जो है ज्यूरी बुलाई गई थी। तो उसकी मदर जो है वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे फादर ने क्या किया, उन्होंने सारे चार्जेस डिनाई कर दिए? तो वो कहता है कि ऑब्वियसली उन्होंने डिनाई किया। अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपके ऊपर एक चार्ज लगा है, इल्जाम लगा है, तो आप जाके ये तो नहीं बताओगे ना कि हाँ भाई मैंने ये किया। एट फर्स्ट यू विल डिनाई, आप मना कर दोगे कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं आ जाता। तो वह कहता है कि उसकी माँ पूछती है कि
अगर उन्होंने जब मना कर दिया कि मैंने ये सब नहीं किया, तो क्या वो ऐसे प्रूफ करने में कामयाब रहे? तो वो कहते हैं नहीं, वो कामयाब नहीं रहे, क्योंकि एक औरत आई, उसके पास सारे एक फाइल दी जिसके अंदर वो पूरे सारे प्रूफ थे कि उन्होंने रिश्वत ली थी। किससे? तुर्क से। और जो है अपनी कंट्री को उन्होंने बिट्रे किया था इन दी वॉर, बीच फ्रेंच वॉर के दरमियान। ठीक है। और जब डेप्यूटीज ने इनका जब ये सारे प्रूफ देख लिए थे, तो उन्होंने हमारे फादर को जो है वो सेंटेंस दी, और उनकी वजह से हमारी फैमिली का नाम रूइंड हो गया। क्योंकि काउंटेस वर लाइक नवाब। नवाब बताया मैंने स्टार्टिंग में कि दे आर लाइक दी हायर स्टैंडर्ड वाले लोग, बहुत अपर क्लास वाले लोग होते हैं। इनको अपने नाम और रुतबे की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। तो अब जब इनके फादर ने ऐसी कोई चीज की जिसकी वजह से इनका नाम खराब हुआ, तो उनका बेटा क्या कहता है कि मैं जो हूँ अपने फादर का नाम अपने नाम के आगे से हटा दूंगा। मैं उनका नाम अपने नाम के आगे से हटा दूंगा, मैं पेरिस छोड़ दूंगा, और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो वो कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों करोगे? तो वो कहता है कि मेरे बाप की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। ठीक है। और लेकिन मुझे पेरिस छोड़ने से पहले एक और काम भी करना है। तो उसकी माँ से पूछते हैं वो क्या काम है जो तुम्हें करना है? वो कहता है मैंने उस बंदे का कत्ल करना है जिसने मेरे बाप का नाम खराब किया है, और मतलब जिसने ये सारी एक्विजिशन इस वक्त पे लाके सामने रखी है। मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही उनका नाम खराब होता है, और उनकी फैमिली जो है वो डिसग्रेस में आ जाती है। ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम? प्लीज यूज द चैट बॉक्स टू आंसर। ओके मुफीज, आप रीडिंग करेंगे यहाँ से आगे? मुफीज, आर यू रीडिंग? यस मैम, कहाँ से? यहाँ से। जी, यहाँ एल्बर्ट से। Albert, where the crime is not there. This they act according to the ev- evidence and did no more. But there is another Wilson विलन। villain who is behind all this. He is the man. He is sick, and he is the man whom I shall. प्लीज कंटिन्यू। Okay, so I will continue the reading. Albert, bah, the crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another, a villain, who is behind all this. He is the man I seek. He is the man whom I shall punish. Countess, but who is he, my son? Albert, how should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspaper and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. Countess. But if your father is a villain, why punish the man who has made his villainy public? Albert, drawing himself up, why? Why indeed? It is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood. It is a matter of the family honor and of our good name. Countess, and how will you find this man? Albert, I cannot find him myself, but I have set my good friend Beauchamp to discover who he is. It was in Beauchamp's newspaper that the accusations first appeared.
If Boucham fails to me, I shall ask the Count of Monte Cristo. Countess, ah, the Count of Monte Cristo. There you have a friend indeed. Why did you not ask his help from the first, my son? The Count is rich and powerful and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the Count to help you? Albert, because he was out of Paris when this affair occurred. You must remember that he and I were on holiday together in Normandy and that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count promised to follow at his leisure, but I have good hope that I shall not need his help. For if Boucham succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor, and then let him be aware. The doors are opened by two valets who stand aside to admit a splendidly dressed nobleman. It is the Count of Monte Cristo. If you have been often to the cinema, you will recognize his sort at once. The handsome hero, gay, cynical, not very young, with a touch of the devil about him. Okay. यहाँ तक जो है एल्बर्ट और उसकी मदर के बीच में बात हो रही है कि एल्बर्ट कहता है कि मैं उस आदमी को पकड़ूंगा और उसे मार दूंगा जिसने मेरे बाप का नाम खराब किया है। तो उसकी माँ से पूछ रही होती कि वो आदमी है कौन, तो वो कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने दोस्त भूषण को बोला है जिसके न्यूज़पेपर में सबसे पहले ये अफवाह आई थी कि मेरे बाप ने ये सारी रिश्वतें ली हैं। तो मैंने भूषण को कहा है वो मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारी जो अफवाहें थी ये दो न्यूज़पेपर के अंदर आई थी। सबसे एक तो न्यूज़पेपर जो था वो भूषण का था जो कि एल्बर्ट का दोस्त था। दूसरा न्यूज़पेपर जो था वो अनोनिमस है, उसका नाम नहीं बताया। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारा उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे बाप ने बुरे काम किए हैं तो तुम उस आदमी को क्यों पनिश करो जिसने ये सारे कामों को मतलब बताया। तो वो कहता है कि उसी की वजह से हमारी फैमिली का नाम खराब हुआ है, अगर वो ना बताता तो आज हमारी फैमिली का नाम खराब ना होता। तो वो कहती है कि आप जो हैं जी ये ड्रामा पढ़ रहे हैं। सो वो कहती है कि तुम जो हो इस आदमी को लेकिन ढूंढोगे कैसे। तो वो कहता है कि मैं तो इसको नहीं ढूंढ सकता, लेकिन अगर मेरे दोस्त भूषण मेरी हेल्प करने में नाकाम रह जाता है तो मैं काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो से हेल्प लूंगा। काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो जो इसने बताया, अब यहाँ पे वो बताएगा कि हाउ डज ही नो काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। तो काउंटेस जो होती है उसकी माँ वो कहती है कि हाँ तुमने उससे पहले सबसे पहले उसी से हेल्प क्यों नहीं मांगी, क्योंकि वो अमीर भी है उसकी पावर भी है। तुम उससे मांगो, क्या पता वो तुम्हें उस बंदे का पता लगवा के बता दे। तो वो एल्बर्ट कहता है कि हाँ मैं उसकी हेल्प मांगता, लेकिन आपको याद है कि वो पेरिस से बाहर चला गया था, हम दोनों पेरिस से बाहर निकले थे और जो है मतलब हम लोग छुट्टियों पे गए थे पेरिस से बाहर नॉर्मंडी। और मैं जो हूँ मुझे वापस घर बुला लिया गया था अपने फादर की न्यूज़ सुनने के बाद। और काउंट ने मुझसे वादा किया था कि वो कुछ थोड़े दिनों बाद वो मेरे पीछे आ जाएगा वापस पेरिस। तो अब यहाँ पे सीन चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दरवाजे खुले। टू वैलेट्स लाइक दो नौकर अंदर एंटर हुए और वो दरवाजे के साइड पे खड़े हो गए, एक दरवाजे के इस तरफ एक दरवाजे के दूसरी तरफ। और एंटर कौन हुआ, एक बड़ा तमीजदार आदमी जिसने बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग की हुई थी। वो कौन था, काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, जिसके बारे में भी बात हो रही थी। अच्छा, काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो का यहाँ पे हुलिया बताया है कि ही इज वन हैंडसम हीरो, मतलब काफी अच्छे फीचर्स रखता है, शार्प फीचर्स रखता है, बड़ा थोड़ा सा यंग टाइप है वो। ठीक है। और डेविल अबाउट हिम, अ टच ऑफ डेविल अबाउट हिम का मतलब होता है थोड़ी सी शैतानी हंसी जो होती है जैसे फेस के अंदर झलकती है कि ये बंदा बिल्कुल सीधा नहीं है, ये बिल्कुल पूरा अच्छा नहीं है, इसके अंदर है कुछ मतलब बुराई, लेकिन वो जाहिर नहीं हो रही होती। उसमें दिखाया उसके थोड़े से बाल हल्के से ग्रेइश टाइप थे, फेयर कलर है। तो जैसे सिनेमा में जाता है कभी हीरो की एंट्री होती है, बिना देखे पता चल जाता है कि हाँ हीरो की एंट्री हुई है। तो बस उसी तरीके से मॉन्टी क्रिस्टो की एंट्री हुई है यहाँ ड्रामे के अंदर। Valet, in a loud voice, the Count of Monte Cristo. The Countess rises, a little flustered. Monte Cristo comes forward, bows, kisses her hand. Monte Cristo, Madam, your servant. My first duty on returning to Paris from any journey must always be to pay my compliments to the Countess of Morcerf. Countess, sir, in my poor home you are ever welcome. For your many kindness to me, to my son, I am your humble and grateful servant. Monte Cristo, turning to the young man and taking him warmly by the hand.
And now, Albert, my young friend, but I see the cloud on your brow. How have met with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris? Albert, I need hardly ask you, my dear Count, if you know the nature of that misfortune, all Paris is ringing with it. You will have heard of my father's disgrace. Monte Cristo, bowing, I have heard of this disgrace indeed, and I have heard that his disgrace is well deserved. But what do you mean to do, Albert? What are your plans for the future? अब यहाँ पे जब काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एंटर हो गया तो वो जाता है पहले तो काउंटेस के पास, उसको मतलब थोड़ा सा झुक के सलाम करता है और उसके हाथ पे किस करता है। एंड देन उसके बाद जो है काउंटेस उससे कहती है कि वेलकम, वो अपने घर के अंदर वेलकम करती है। तो वो कहता है कि मेरा, मॉन्टे क्रिस्टो कहता है कि मेरा सबसे पहला फर्ज ये है कि जब मैं पेरिस वापस आऊँ तो मैं काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ को जो है सब आके सलामी दूं, ठीक है। उसके बाद वो उनसे ग्रीटिंग्स करता है, बातें वगैरह करता है। उसके बाद वो एल्बर्ट से बात करना स्टार्ट होता है कि तुम वापस इतनी जल्दी आ तो गए, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो वो कहता है कि आपने सुना नहीं कि पूरे पेरिस को ये बात पता है कि मेरे फादर के बारे में, कि उनका नाम जो है बदनाम हो चुका है। तो मॉन्टी क्रिस्टो उस पे क्या कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे फादर की बदनामी जायज थी। फिर उसके बाद वो बात बदल देता है और कहता है कि अब तुम्हारे क्या प्लान्स है फॉर द फ्यूचर, ठीक है। Here, Albert, what are my plans? Why, my first plan is to find out my enemy and avenge the family honor. Monte Cristo, a little amused. The family honor? Ah, I see. Weak and fearful as your father is known to be, cruel as he has often been to you and your mother, traitor as he has been proved in the eyes of his countrymen, you will yet avenge his disgrace for the sake of your name. May I ask who the man is on whom you propose to revenge yourself? Albert, seizing his hand. Ah, Count, if only you could help me to find him out. The villain who brought about my father's disgrace is publishing evil reports in the newspapers, but it may be that I shall not need your help to find him. Beauchamp has promised to assist me, and I believe he is now very near to finding the name of my enemy, Monte Cristo. And when you have found him, this enemy, what will you do with him? Albert, can you ask it? I shall challenge him within the hour. May I hope that you will be my second count? Monte Cristo, smiling and shaking his head. That might prove difficult. Besides, you know my opinions of duels. I told it to you when we were in Rome. If a man has insulted you or struck a blow, then a duel may be a good way of dealing with him. But slowly, with deliberation, when a man has done you a deadly wrong, he subjected you to slow, profound, eternal torture, then you must treat him as he has treated you. An eye for an eye, a tooth for a tooth, that is the rule I follow. Albert, but you will at least help me find my man. अच्छा, अब यहाँ पे जब वो उससे पूछता है कि व्हाट आर योर प्लान फॉर फ्यूचर, एल्बर्ट कहता है कि मुझे सबसे पहले तो, वो कहते हैं मुझे सबसे पहले तो सादगी को ढूंढना जिसने मेरे बाप का नाम खराब किया। तो मॉन्टी क्रिस्टो जो थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है कि मतलब तुम लोगों की इज्जत, वो कहते हैं हमारी खानदान की इज्जत है, बात है ना। तो वो कहता है तुम्हारे खानदान की इज्जत, तुम्हारा बाप जो शुरू से तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, और जो है वो एक ट्रेटर भी साबित हो गए, दगाबाज भी साबित हो गए टू हिज कंट्री, और ऐसा इंसान जो कि रिश्वत लिया करता था, तुम उसको डिफेंड करोगे? तो वो कहता है कि, और कहता है कि अच्छा तुम सिर्फ उसके नाम को डिफेंड करोगे इसलिए क्योंकि उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ लगा हुआ है। तो उसके बाद वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा क्या, किस तरीके से तुम उसको अवेंज करोगे ना। तो वो कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प करो उस आदमी को ढूंढने में, तो जिसने मेरे बाप का नाम खराब किया है, और वो जो आदमी जो है वो मेरे बाप के खिलाफ जो है वो अफवाहें फैला रहे हैं न्यूज़पेपर्स, बट मैंने अपने दोस्त को भी कहा है भूषम को, वो मेरी हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो मेरी हेल्प ना कर सका तो आई वुड नीड योर हेल्प, ठीक है। मॉन्टी क्रिस्टो उस पे कहता है जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम उसके साथ क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं उसे एक ड्वेल पे चैलेंज करूंगा। ड्वेल कहते हैं लाइक इट्स काइंड ऑफ अ फाइट जिसमें दो लोग होते हैं, सिर्फ दो लोग।
और इसमें कोई एक जिंदा बचता है, ठीक है। एक आदमी दूसरी एक तरफ खड़ा होता है, दूसरा आदमी दूसरी तरफ खड़ा होता है, एक दूसरे की तरफ पीट करके, और उन दोनों के हाथ में एक रिवॉल्वर होती है या तो फिर कोई भी वेपन होता है। और जब वो मुड़ते हैं तो सबसे पहले जिस आदमी ने दूसरे को मार दिया वो जीत जाएगा, ठीक है। इसमें एक आदमी का मरना लाजमी होता है। तो वो कहता है अगर मैं उसे डुएल पे चैलेंज करूं तो क्या आप मेरे सेकंड रहेंगे। सेकंड इज लाइक जब आप डुएल करते हो तो आपके पास एक दूसरा बंदा भी होता है, अगर वो मारने को रह गया कि आपके पास भी एक दूसरा बंदा होगा, आपकी एनिमी के पास भी एक दूसरा बंदा होगा। जब वो आपको मार देगा तो आपकी जो एनिमी है वो उसके साथ जो दूसरा बंदा है वो आपकी हेल्प करेगा उस आदमी को मारने में। तो चार लोगों के बीच में ये लड़ाई होती है, और इसके अंदर जो सबसे पहले जो है वो रिवॉल्वर चला दे, ये सबसे पहले जो है वो किसी को मार दे तो वो जीत जाता है और दूसरा बंदा जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा सेकंड तो बन नहीं सकता क्योंकि काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ये हमेशा कहता था कि अगर किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया है तो उसका अच्छा तरीका है एक ड्वेल से उसको चैलेंज करना। बट अगर तुम्हें किसी ने बहुत मतलब इंतहा के उस पर जाके जलील करा है तो तुम उसे भी उस इंतहा पे जाके जलील करो। जैसे फॉर एन आई, टूथ फॉर टूथ, जैसे ये वाला सीन होता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ भी सेम यही करूंगा। तो वो एल्बर्ट उसे कहता है लेकिन आप मुझे वो जो मेरा आदमी है मुझे उसको ढूंढने में मदद करेंगे। इसमें मॉन्टी क्रिस्टो कहता है दैट विल नॉट बी इन द लीस्ट नेसेसरी, आई अश्योर यू योर फ्रेंड बूशम विल फाइंड हिम इजीली इनफ। टर्निंग टू द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, मैडम आई प्रे यू टू एक्सक्यूज मी नाउ, आई कॉल्ड हियर for but a moment to pay my compliments to you and to speak a word of commiseration to my young friend Albert. Countess protesting, but Count, why need you leave us so soon? You have not even rested after your journey. Pray be seated, sir, while I summon my servants and order them to set some refreshment before you. Countess, waving Monte Cristo, waving his hand. Pardon me, madam, I cannot say to Albert au revoir, and remember what I tell you. Do not put your trust in duels, but in a slow and surely planned revenge. Madam, he turns to the Countess, your most abject slave. He raises her hand to his lips, kisses it, and then walks to the door, which is opened for him by the valets. He goes out. Countess, after a short silence, strange, so very strange. Albert, strange indeed, mother. Why should he object to dueling? What does he know of revenge? Countess, I was not speaking of dueling or of revenge. I was in another thing which struck me as strange. Have you never observed, Albert, that in all his visit to our home, the Count of Monte Cristo has never once broken bread? Often as I have begged him to do so, he has never accepted refreshment of any kind whatsoever. Albert, who has been pacing to and fro and who now stops short, that is indeed singular now that you have mentioned it. अच्छा, अब यहाँ पे जो काउंट होता है वो इसको एल्बर्ट को कहता है कि मेरी तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा दोस्त जो है वो उस आदमी को ढूंढ लेगा, और मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी माँ से सलाम दुआ करने आया था और तुम्हारी जो है थोड़ी सी मतलब दिलासा देने आया था। उसके बाद जो काउंटेस उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर रुको, हमारे साथ खाना वगैरह खाओ। तो उस पर मॉन्टी क्रिस्टो कहता है कि पार्डन मतलब सॉरी, कहते हैं मैं यहाँ पे और देर नहीं रुक सकता। एल्बर्ट को कहते हैं और एवॉर्ड जो है वो फ्रेंच में कहते हैं गुड बाय को, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन डुएल्स, अपना जो है यकीन उन इन लड़ाइयों के अंदर मत रखो, डुएल्स के अंदर मत रखो, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि तुम उसके साथ वैसे ही उसको एक क्या कहना चाहिए, लंबी और दर्दनाक मौत दो। जैसे वो होता है ना, श्योरली उसको इतना जलील कर दो और उसे जिंदा छोड़ दो कि पूरी जिंदगी जिल्लत के साथ वो गुजारे। तो फिर वो जो है वो मैडम को कहता है गुड बाय एंड देन ही गोज आउट, ठीक है। उस पे काउंटेस कहती है कि बहुत अजीब बात है। तो एल्बर्ट कहते हैं है ना, अजीब बात है ना, क्योंकि मुझे मुझे नहीं समझ में आया कि मॉन्टी क्रिस्टो ने ड्वेल के ऊपर ऑब्जेक्ट क्यों किया, उसने ड्वेल करने से मना क्यों किया, उसको क्या पता है बदले के बारे में। तो काउंटेस इस पे कहती है कि मैं बदले या ड्वेल के बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं इस बारे में बात कर रही थी कि कभी तुमने नोट किया ये मॉन्टी क्रिस्टो जब भी हमारे घर पे आता है इसने कभी हमारे साथ खाना नहीं खाया, ये हमेशा बिना खाना खाए चला जाता है।
तो इस पे एल्बर्ट कहता है, जो कि एल्बर्ट जो है वो चल रहा होता है इधर से उधर हाथ पीछे बांधे, उस पे एल्बर्ट रुकता है और कहता है कि अब जब आपने मेंशन किया है तो मैंने भी ये बात नोटिस की है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। क्लास का टाइम एंड हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला समझ में आ रही है स्टोरी? यस और नो, प्लीज क्विकली आंसर मी। ओके, तो अल्लाह हाफिज, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर टिल देन।